We are very well aware with the fact that plant can synthesize their own food, but how they are able to do it? So hi, in today's video lecture, we are going to learn about a very beautiful process known as photosynthesis. और इस प्रोसेस के दौरान हम ये सीखेंगे कि प्लांट अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं. So first thing first, let's just decode the following word photosynthesis, जिसमें फोटो का मतलब होता है लाइट. Photo means light and synthesis means formation. So it's very simple. तो हम लाइट के प्रेजेंस में किसी चीज का फॉर्मेशन करेंगे and this is what the means the word photosynthesis. Let's just understand a transfer section of a leaf. Here we have taken a leaf, a dicot leaf primarily. इट इज अ डाइकॉट लीफ. और अब इस डाइकॉट लीफ को हम एक ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं और जरा ये देखते हैं कि इस डाइकॉट लीफ के अंदर कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेल्स पाए जाते हैं. सो या वी हैव टेकन अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ दिस डाइकॉट लीफ. और इस डाइकॉट लीफ के ट्रांसफर सेक्शन में सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सबसे ऊपर एक लेयर है, इसका नाम है एपिडर्मिस. And this epidermis is involved in the function of protection of the plant tissue. And this is the upper epidermis, and this one here is the lower epidermis. तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ में हमें ये दिखाई दिया कि एक ऊपर वाली एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस, एंड देयर इज अ लोअर एपिडर्मिस. और दोनों एपिडर्मिस का फंक्शन होता है कि वो प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लीफ के सरफेस को, लीफ के अंदर के टिश्यू को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. और अंदर की तरफ में, एपिडर्मिस के अंदर की तरफ में मुझे लीफ के सेल दिखाई दे रहे हैं. दीज आर द सेल्स ऑफ लीव्स. And these leaf cells are known as a mesophyll cell. Mesophyll cell. Meso means in between and fill means leaf. तो लीफ के अंदर जो सेल पाए जाते हैं उन्हें मेसोफिल सेल कहते हैं. और here we are able to see the vascular bundles. These are the vascular bundle, xylem and phloem. So these are the vascular bundle, xylem and phloem, and we will definitely talk about these vascular bundle in a very more detail in upcoming videos. And one more thing we are able to see here is that this is small openings. The small openings present on the surface of the leaves, primarily on the lower epidermis, they are more in number as compared to the upper epidermis. And these openings, very important, these openings are known as stomata. And often these openings are guarded by the guard cells. We will definitely talk about in the upcoming slides about the guard cells. So this is a ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ डाइकॉट लीफ. व्हेन वी कट अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ डाइकॉट लीफ, हमें उस पे सबसे पहले एक अपर एपिडर्मिस दिखाई देती है. दिस इज द अपर एपिडर्मिस एंड दिस वन हेयर इज द लोअर एपिडर्मिस. और अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में हमें दिखाई देते हैं सेल्स ऑफ द लीव्स. एंड लीफ के सेल को हम लोग कहते हैं मीजोफिल सेल. एंड मीजोफिल सेल्स के अंदर ही आपके पास में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं. हम अभी आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में इसको देखेंगे जरूर. और लीफ के अंदर जो ये वीन्स आ रही हैं, ये जो वीन्स हमें यहाँ पर प्रेजेंट दिखाई दे रही हैं लीव्स के अंदर, इन वीन्स के अंदर पाए जाते हैं वैस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम. Here are the vascular bundle, xylem and phloem. और लीफ के सरफेस पे हमें छोटी छोटी ओपनिंग्स दिखाई देती हैं. हम इन ओपनिंग्स का फंक्शन अभी जरूर देखेंगे. इन ओपनिंग्स को बोला जाता है स्टोमेटा, एंड स्टोमेटा आर गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स. तो दिस इज वेरी इजी. Next, let's just understand a mesophyll cell. Is mesophyll cell, that is obviously a plant cell, and the outermost covering and outermost layer of a plant cell is always a dead cell wall, made up of cellulose. And inside this dead cell wall, there is plasma membrane. There is plasma membrane, which is a living structure. Next, inside the cell of the mesophyll cell, obviously, there is the cytoplasm. There is the cytoplasm. And what we are here is interested in a structure, an organelle, which is known as chloroplast. This is the chloroplast. और अभी हम इसी के अंदर इंटरेस्टेड हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर. सो दिस इज अ सिंपल मेसोफिल सेल. वी हैव टेकन अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ लीफ. और जब हमने लीफ का ट्रांसफर सेक्शन लिया तो उस लीफ के ट्रांसफर सेक्शन में हमें मिडल में बहुत सारे मेसोफिल सेल दिखाई दिए. मेसोफिल सेल, एंड दीज मेसोफिल सेल्स आर वेरी मच abundant in the structure organelle known as chloroplast. And this chloroplast is
pretty much necessary for the function of the and for the process of photosynthesis. तो इस क्लोरोप्लास्ट के जरा हम इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में. So this is the chloroplast, and this organelle chloroplast is double membrane bound structure. So this is the outer membrane of the chloroplast. This is the outer membrane of the chloroplast, and this one here is the inner membrane of the chloroplast. This is the inner membrane of the chloroplast. Here again, this is the outer membrane of the chloroplast, और ये रही chloroplast की inner membrane. So what we have learned so far is about the chloroplast is कि this is known as the kitchen of the cell, क्योंकि process of photosynthesis यहीं पर ही होने वाला है. हमने पढ़ा है कि process of photosynthesis green parts of plant में होता है, और green parts of plant के अंदर हमने जब एक लीफ का ट्रांसफर सेक्शन लिया तो उस लीफ के ट्रांसफर सेक्शन में मुझे बहुत सारे मीजोफिल सेल दिखाई दिए, और उन मीजोफिल सेल के अंदर हमें एक ऑर्गेनली, एक वेरी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनली दिखाई दे रहा है जिसका नाम क्या है आपके पास में, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट. और क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है. नाउ हियर्स अ क्वेश्चन फॉर यू. Can you name another two double membraned organelles present inside an eukaryotic cell? That's a question for you, and you can just answer me in the comment section. Okay, let's move on further. So this is the chloroplast, which is a double membrane bound organelle, and इस double membrane bound organelle के अंदर outer membrane and inner membrane, and इसके अंदर एक fluid enclosed होता है. This is a fluid present inside this fluid. This fluid is known as stroma. दिस फ्लूइड हेयर इज नोन एज स्ट्रोमा. सो यहाँ पर एक फ्लूइड होने वाला है अंदर की तरफ में क्लोरोप्लास्ट के, इसका नाम क्या है, स्ट्रोमा. एंड स्ट्रोमा का नेचर होता है प्रोटीनेशियस. इसका नेचर कैसा होता है, प्रोटीनेशियस इसका नेचर होता है. इसमें अबंडेंट ऑफ प्रोटीन पाए जाते हैं. लेट मी नेम अ फ्यू ऑफ देम. इसमें एक बड़ा अबंडेंट प्रोटीन पाया जाता है, वेरी इंटरेस्टिंग. उस अबंडेंट प्रोटीन का नाम है रुबिस्को. रुबिस्को ये एक मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है पूरे के पूरे बायोस्फीयर का. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू. तो प्लांट के अंदर पूरे बायोस्फीयर में, इंक्लूडिंग ऑल द बायोस्फीयर, इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, उसके स्ट्रोमा में पाया जाता है. एंड द नेम ऑफ द प्रोटीन इज रुबिस्को. एंड वेरी इंटरेस्टिंग कि ये जो प्रोटीन है ये एक एंजाइम की तरह काम करता है. हम इसके बारे में जरूर आगे जाकर नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये एंजाइम की तरह कैसे काम करता है और कौन सी प्रोसेस में काम करता है. ऑब्वियसली ये फोटोसिंथेसिस में ही काम करेगा. तो क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, और अंदर की तरफ जो फ्लूइड पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के, हम उसको स्ट्रोमा बोलते हैं. और स्ट्रोमा का नेचर कैसा होता है, प्रोटीनेशियस होता है, क्योंकि इसके अंदर एक वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है रुबिस्को. और इंटरेस्टिंगली रुबिस्को एक एंजाइम की तरह भी काम करता है. हम देखेंगे कौन से एंजाइम की तरह काम करता है और कौन सी प्रोसेस में मदद करता है ये आगे जाकर फर्दर. ओके, नेक्स्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड पाए जाते हैं. These structures are known as thylakoid. हम इस थाइलाकॉइड के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में जरूर देखेंगे कि थाइलाकॉइड एक्चुअल में स्ट्रक्चर है क्या. सो दिस थाइलाकॉइड वी विल डील इन द नेक्स्ट स्लाइड. एंड ये जो थाइलाकॉइड होते हैं ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं. अगेन ये मेम्ब्रेन के बने होते हैं, एंड ईच एंड एवरी मेम्ब्रेन इन दिस लिविंग सिस्टम इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर. हर मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की बनी होती है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव जस्ट सीन इन द प्रीवियस स्लाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, and this membrane is a living membrane, and each membrane is made up of lipid bilayer. Similarly, the outer and the inner membrane of the chloroplast is also made up of lipid bilayer, and these thylakoid are also membranous structure, again lipid bilayer structure. and ये thylakoid क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर stack हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं, और these stacked thylakoid are known as grana. So these stacked thylakoid are known as grana. Here you can see very beautifully how they are stacked over one another. See, this is the one thylakoid, this is the first thylakoid, and in the beside it there you can see another thylakoid in the below, and this is the one thylakoid, the second one, this third one, fourth one. These thylakoids are stacking over one another, and this led to the formation of a structure known as grana. So chloroplast, outer membrane, inner membrane, very easy. And inner membrane encloses a fluid, a proteinaceous fluid known as stroma, and that protein is known as rubisco, and this is the most abundant protein in the whole biosphere. And inside the chloroplast, inside the stroma, we have seen a membranous structure जिसका नाम क्या है, thylakoid. और thylakoid एक दूसरे के ऊपर stack हो सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर लगे हो सकते हैं, and these stacked structure is known as grana. And one more interesting thing we have
seen over here is क्लोरोप्लास्ट का खुद का डीएनए होता है. See here, क्लोरोप्लास्ट का खुद का डीएनए होता है. ये रहा, क्लोरोप्लास्ट का खुद का डीएनए है. और ये डीएनए वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और आपके पास में ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर होता है, जस्ट लाइक अ बैक्टीरिया. सो दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड सर्कुलर डीएनए. एंड प्लस वी हैव seen something here is that this structure, these are the ribosomes. These structures are the ribosomes which are very helpful in the formation of the protein. So this is the structure of chloroplast: outer membrane, inner membrane, the fluid, the proteinaceous fluid stroma, which contains an enzyme known as rubisco. अंदर की तरफ में membrane structure known as thylakoid, and उसके अंदर पाया जाता है आपके पास में, we will see that उसके अंदर chlorophyll molecules होते हैं. और इसके अंदर स्ट्रोमा के अंदर ही पाया जाता है आपके पास में सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. और अंदर ही स्ट्रोमा की तरफ में राइबोसोम्स पाए जाते हैं विच आर वेरी हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. एंड दिस क्लोरोप्लास्ट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल. सबसे बड़ा सेल का ऑर्गेनेली क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है. और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फॉर्मेशन होने वाला है फूड का. इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रोसेस होने वाली है कौन सी? फोटोसिंथेसिस. सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड मोर अबाउट द थाइलाकॉइड इन द नेक्स्ट स्लाइड. So thylakoid, I have already discussed that this is the just a membranous structure. So this is a membranous structure here. This is a membranous structure. So this is a membranous structure and इसके अंदर हमें पता है कि lipid bilayer का membrane होती है. हर membrane is made up of lipid bilayer. और very interesting, इस lipid bilayer के अंदर ही पाए जाते हैं आपके chlorophyll pigments. So here chlorophyll pigments are present. And what are these pigments? So thylakoid membrane is studded with these pigments. And what are pigments? Pigments आपके पास में organic compound होते हैं. So ये क्या होते हैं? Organic compound होते हैं. और ये इतने special organic compound है that they can capture a specific wavelength of the light. So what they can do is they can capture specific wavelength of light. ये स्पेसिफिक लाइट को कैप्चर कर सकते हैं, स्पेसिफिक सनलाइट को कैप्चर कर सकते हैं. वी विल डिस्कस दैट कौन से स्पेसिफिक सनलाइट को ये कैप्चर कर सकते हैं इन द अपकमिंग वीडियोस लेक्चर अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो व्हाट वी हैव सीन इज ओवर हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ थाइलाकॉइड, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है. एंड दीज थाइलाकॉइड्स कैन स्टैक ओवर वन अनदर. एंड थाइलाकॉइड इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. और थाइलाकॉइड के अंदर क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट्स पाए जाते हैं, पिगमेंट्स. और ये पिगमेंट्स क्या कर सकते हैं? ये सनलाइट को कैप्चर कर सकते हैं, स्पेसिफिक वेवलेंथ को कैप्चर कर सकते हैं. एंड दीज पिगमेंट्स आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड. एंड very interesting, one of the example of these pigment is chlorophyll molecule. क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. एंड दिस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, इसके स्ट्रक्चर में, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑब्वियसली, मगर इसके स्ट्रक्चर में एक मैग्नीशियम का मॉलिक्यूल भी पाया जाता है. इसके ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम भी पाया जाता है. ओके. एंड हियर इज वन मोर क्वेश्चन फॉर यू. क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कौन से मॉलिक्यूल से सिमिलर हो? क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कौन से मॉलिक्यूल से सिमिलर होता है? कमिंग डाउन इन द सेक्शन ऑफ दिस वीडियो. ओके, लेट्स मूव फर्दर. इसके अंदर हमें क्या दिखाई दिया? तो थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर है. इसके अंदर क्या लगे होते हैं? क्लोरोफिल के पिगमेंट्स लगे होते हैं थाइलाकॉइड के स्ट्रक्चर. और थाइलाकॉइड के सेंटर में हियर यू सी अ vacant space, and this vacant space is known as lumen. Okay, so what happened is कि हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा अब तक. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? थाइलाकॉइड पाया जाता है. तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे यहाँ पर मेंशन करने हैं कि आपको थाइलाकॉइड के बारे में पॉइंट याद होना चाहिए, और दूसरा किसके बारे में याद होना चाहिए? स्ट्रोमा के बारे में चाहिए. स्ट्रोमा इज द प्रोटीनेशियस और उसके अंदर रुबिस्को एंजाइम होता है. एंड फर्दर आपको थाइलाकॉइड के बारे में पता होना चाहिए. ओके, अभी हम स्ट्रक्चर पे ही हैं तो आगे की तरफ में मूव ऑन कर जाते हैं. स्ट्रक्चर के अंदर थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर मुझे समझ में आ चुका है. इसके बाद लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड अ वेरी इंटरेस्टिंग सेल्स, जिसके बारे में हमने अभी सेकंड स्लाइड में भी बात करी थी, फर्स्ट और सेकंड स्लाइड में, कि आपके लीफ के सरफेस पर क्या पाए जाते हैं? छोटी छोटी ओपनिंग्स पाई जाती हैं, जिन ओपनिंग्स को हमने अभी नाम दिया था स्टोमेटा. एंड इन ओपनिंग को ओपन और क्लोज कर सकता है गार्ड सेल्स. दीज ओपनिंग आर गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स. ओके, स्ट्रक्चर देखते हैं जरा गार्ड सेल्स का और क्लोरोप्लास्ट का, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखते हैं. सेंटर में आपको एक ओपनिंग दिखाई दे रही है. इसी ओपनिंग का नाम होता है
स्टोमेटा। अभी हम स्ट्रक्चर से डील कर रहे हैं, तो हम स्टोमेटा के फंक्शन अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स में जरूर देखेंगे कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, मगर अभी हम स्ट्रक्चर से डील कर रहे हैं। सो लीफ के सरफेस पर एपिडर्मिस में, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में, मगर स्टोमेटा जो होती है ओपनिंग, वो लोअर एपिडर्मिस में ज्यादा पाई जाती है एज कंपेयर टू द अपर एपिडर्मिस। तो these are the openings present in the leaves, and these openings are guarded by the guard cells. So these are the गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स के बारे में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि गार्ड सेल्स के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। गार्ड सेल्स के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट पाए जा सकते हैं। इसका मतलब गार्ड सेल्स कैन आल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। they can also perform the function of photosynthesis. Okay, guard cells के चारों तरफ these cells, these interesting cells, these are known as subsidiary cells. Subsidiary cells. So this is the very interesting and very simple structure of the guard cells. And guard cells यहाँ पर आपको bean shape के दिखाई दे रहे हैं। See, guard cells हमें यहाँ पर bean shape के दिखाई दे रहे हैं। So these are the bean shaped guard cells, जो कि डाइकॉट का फीचर भी होता है, डाइकॉट प्लांट्स का फीचर भी होता है। और मोनोकॉट प्लांट्स में ये जो डाइकॉट्स होते हैं, ये जो गार्ड सेल्स होते हैं आपके पास में, ये डम्बेल शेप के होते हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल्स इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ वी विल सी हाउ दीज गार्ड सेल्स regulate the opening and closing of the stomata. See, we are seeing here that stoma is closed, stomata are closed over here, and stomata are open here. So how they are able to making them open or close. So यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि गार्ड सेल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट गार्ड सेल्स स्टोमेटा को ओपन कैसे करते हैं। जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर फ्लो करता है, जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर फ्लो करता है, तो ये गार्ड सेल्स को क्या बना देते हैं, टर्जिड बना देते हैं। गार्ड सेल्स वाटर लेकर स्वेल कर जाते हैं। वाटर, यू आर एबल टू सी दैट हियर, वाटर। सो जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी भर जाता है, जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर फ्लो करता है, तो वो गार्ड सेल को टर्जिड बना देता है। और गार्ड सेल की टर्जिड होने की वजह से ही स्टोमेटा आपके पास में कैसे हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म, हमें इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। अदरवाइज इसका एक डिटेल मैकेनिज्म भी होता है कि गार्ड सेल्स सर्टेन आयंस की मदद से और वाटर की मदद से ऑब्वियसली स्टोमेटा को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। So, what is the simple mechanism of opening of the stomata? Stomata open कैसे होते हैं? गार्ड सेल्स के अंदर क्या फ्लो करता है, वाटर फ्लो करता है, जिस वजह से गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टर्जिड हो जाते हैं। और गार्ड सेल्स के टर्जिड होने की वजह से ही ये गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और ये किसको ओपन कर देते हैं, स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं। नेक्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। अब जब इन गार्ड सेल से वाटर का रिमूवल होगा, जब इन गार्ड सेल से वाटर का रिमूवल होगा, गार्ड सेल से वाटर क्या करेंगे, लॉस करेंगे, जिस वजह से यहाँ पर स्टोमेटा की क्या हो जाएगी, आपके पास में क्लोजिंग। So this is very much easy, opening and closing of stomata. For opening of the stomata, guard cells become turgid, and for closing of the stomata, they lost the water.